Hello kids, today we are going to learn about other animals and we are going to do activities. Okay, animals are classified on the basis of their food also. They are herbivorous, carnivorous, omnivorous, parasites, etc. Herbivorous means what? See here kids in this picture. Animals that eat plants, grass are called the herbivores. Animals that eat plants and grass are called herbivorous animals. Carnivorous animals are those that hunt other animals for their food, means they eat flesh of other animals. They eat flesh of the other animals. Now, omnivorous animals. See here, bear and man, human being. Animals that eat both plants and other animals. Animals that eat plants and other animals, they are called omnivorous. Okay, next is scavengers. Animals that feed on dead animals are called scavengers. Animals that feed on dead animals are called scavengers. Okay, this type parasites are small animals get their food on living organisms. Parasites are small animals get their food on living organism. They may live on or inside the body of their host. Example, fleas, lice live on the host body while tapeworm, roundworm, hookworm live inside it. पैरासाइट मतलब किड्स जो एनिमल के ऊपर स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं. सी हियर, फ्लीज एंड लाइसिस. गर्ल्स, व्हेन इफ यू नॉट कीप द क्लीन योर हेयर, दैट टाइम लाइसिस विल बिकम. चूहे बोलते हैं हिंदी में, चूहे हो जाते हैं. जब बारिश में भीग गए तो बालों को ड्राई नहीं किया तो भी चूहे हो जाते हैं. पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स गेट देयर फूड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, दैट टाइप सी इन दिस picture. See here kids, बच्चों, जैसे डॉग्स के ऊपर, कैट्स के ऊपर फ्लीज होते हैं ना और बालों में चूहे होते हैं ना, वैसे ही बफेलो के ऊपर सम पैरासाइट्स होते हैं. ओके, फॉर दैट here ask the questions. Are you seeing here? On buffalo, one bird is sitting here. Why it is sitting? Its name is ergot. One bird sitting on the buffalo. Think, why it is sitting? Because parasites
are on the buffalo. The parasites are feed on live animals such as fleas and lice. ऐसे एनिमल होते हैं ना जैसे फ्लीज एंड लाइसिस, वो हर लिविंग एनिमल्स के ऊपर रहते हैं. Here question is, why do you think the irrigate is sitting on the buffalo? आप सोचते होगी ना ये इरिगेट क्यों बफेलो के ऊपर है. Here what we learned here, parasites are there on living bodies. पैरासाइट्स लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनका वहीं पर खाते हैं. दे सक द ब्लड ऑफ दैट वन एनिमल, जिसके ऊपर होते हैं उसका ही ब्लड वो खाते हैं. सी दे पैरासाइट्स. देन व्हाई दिस वन इरिगेट सिटिंग ऑन बफेलो? बिकॉज पैरासाइट्स आर ऑन बफेलो. इस बफेलो के ऊपर भी छोटे छोटे से पैरासाइट्स है. small parasites, house flies, sorry, only flies, call it flies. insects होते हैं. flies मतलब कौन सा भी insect होने दो. The main reason why can irrigate sitting on buffalo is to eat flies and other pets on the buffalo. irrigate क्यों बैठा है? क्योंकि इस बफेलो के ऊपर जो भी फ्लाइज बैठते हैं और पैरासाइट्स होते हैं ना स्मॉल सच एज दिस वन, वो खाने के लिए इसके ऊपर, किसके ऊपर? बफेलो के ऊपर इरिगेट बैठा है. पता चला? वो इंसेक्ट खाने के लिए बैठा है, नॉट फॉर टूर, घूमने के लिए नहीं बैठा हो. दिस इरिगेट sitting on buffalo because of to eat the flies and other pets on the buffalo. buffalo के ऊपर में से flies रहते हैं, other pets रहते हैं, उसको खाने के लिए वो बैठा है. that one pets are called parasites. वो parasite खाने के लिए buffalo के ऊपर बैठा है. next question, have you seen any animal riding on the other animal? Write its name. Yes, most of the birds sitting on the other animals because to eat the parasites, to eat the flies, to eat the fleas, to eat the lice. Animals के ऊपर birds बैठते हैं because of to eat the parasites. Here which bird is sitting on that one buffalo? Irrigate. Okay, next one question. The animal which gives the ride. The animal which gives the ride. The animal which is riding on buffalo? Irrigate. And the animal which gives ride? सवारी कौन कर रहा है? इधर बफेलो कर रहा है और ए इरिगेट उसके ऊपर बैठा है. विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम घूमने के लिए, सवारी के लिए, टूर के लिए कौन कौन से एनिमल्स यूज करते हैं? हॉर्स, डोंकी, कैमल एक्सेट्रा. हॉर्स के ऊपर बैठकर घूमते हैं, डोंकी के ऊपर बैठकर घूमते हैं, कैमल के ऊपर बैठकर घूमते हैं. Yes or no? Yes. Next question. Which animal do we use for carrying loads? लगेज लाने के लिए, अपना लोड लाने के लिए, थिंग्स लाने के लिए कौन कौन से एनिमल्स यूज करते हैं हम? डोंकी. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंकी, हॉर्स, कैमल, ऑक्स एक्सेट्रा. ऑक्स मीन्स बुलक कार्ट. ओके. नेक्स्ट सी. हियर वन activity is there, making a elephant. हमें अभी एलिफेंट बनाना है बच्चों. ऐसा एक एलिफेंट
पेपर से बनाना है. So that make your own elephant. खुद का एक एलिफेंट बनाएंगे हम. So that you take a print of this paper. Take a print. ऐसा एक प्रिंट बना लो. अब जेरॉक्स सेंटर में जाकर बनाया तो भी चलेगा, नहीं तो यहीं पर प्रिंट निकाला तो भी चलेगा. आई विल शो यू हाउ टू टेक अ प्रिंट. अभी मैं दिखाती हूँ कैसा प्रिंट लेते हैं. सो दैट लुक हियर हाउ आई एम टेकिंग अ प्रिंट ऑफ दिस वन एलिफेंट. It is the elephant picture, and I will keep a one plain paper below of this one page. Look here, I'll keep it, and this elephant picture is I will place on it. Now I will trace here dot is there, dot. Where it is dot is there, no, you give the dot. Okay. Where it is there, dot. And where line is there, no, make a line. Understood, no kids, how I am drawing it, how I am pressing it. Same to same, how it is there, no, print it. Make a line here, lines. Because it is for folding is there, here folding is there. Where lines are there, no, there is a inside folding is there. And look here, red mark is there, no, cutting is there. Where shown a सीजर एंड रेड मार्क इज देयर, ना, जहां पर रेड कलर का दिखाया ना वहां पर सीजर से उतना ही कट कर उसको अंदर फोल्ड करना है. इट इज द एक्टिविटी. नाउ आई एम इट प्रेस्ड. ओके, प्रिंट इट इज टेल. ओवर ना. ओके, नाउ सी हाउ आई एम प्रेस्ड इट एंड yes, see a picture. I am pressed it. Okay, where dot is there, no, you make dot there. And where line it is there, no, draw lines. It is for folding. Now I will cut it. मैं अभी क्या करूंगी, इसको कट करूंगी. कहाँ पर कट करूंगी? पूरा आउटसाइड. एंड वेयर रेड मार्क इज देयर, जहां पर रेड किया है उन्होंने वहीं पर कट करूंगी. देखो बच्चों, अभी मेरा एलिफेंट कैसा रेडी होता है घूमने के लिए. ओके, सी दिस टाइम I made it. I cut this one part. See here red mark is there. Where red mark and this one scissor show now, cut that one part too. That one part also you cut. First, take this one elephant picture
फ्रॉम योर पेपर आउटसाइड, फ्रॉम योर पेपर, पेपर से इसको बाहर निकालेंगे एलिफेंट को। ओके देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने उसको कैसे बाहर निकालती हूँ। आई विल शो इट। ओके सी हियर किड्स, आई टेकन दिस वन एलिफेंट फ्रॉम द पेपर, पेपर से मैंने इसको कट कर कर लिया है। तो फिर यहाँ पर क्या दिखा है, व्हाट इज शोन हियर, रेड मार्क, वेर इज शोन रेड मार्क नो, यू कट देयर ओनली, मेक अ स्मॉल कट दैट पार्ट, see here where it is red line, no? Make a small cut there. To fold the paper, to fold that one, you make a small cut. Okay, now I will fold this lined part. This is lined part is now where we lined means where we draw a lines, no, that one, where we drawn a line, that part I will fold it. Here also if they near to here, you fold it inside. Okay, see here inside I am folded this one, this and here near to I folded. Now bend this one, bend the dash dot part line. Look here. Here dot line is there, no? You bend that one. Don't fold, bend it. Yes, now our elephant is ready. Our elephant is ready. Here tail is given. We'll cut the tail part and we'll stick that one. See here, tail part is there, we'll stick here tail part. Understood, no kids? We'll stick it. See, now our elephant is ready. Our elephant is ready. I will keep it here on mat and I'll show you. Okay. See kids, see it is my elephant, its tail, I will stick it here. See how it is there, my elephant, beautiful. That type you also make your own elephant. आप अपना खुद का एलिफेंट रेडी करो। पेज नंबर 28 के ऊपर एलिफेंट बनाने का पिक्चर प्रिंट दिया है, उसको प्रिंट करो, कट करो और फोल्ड करो, बेंड करो। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट सी व्हाट डू से दे। अदर एनिमल्स क्या बोल रहे हैं? अभी पैरासाइट्स के बारे में देखा हमने, एक्टिविटी के बारे में भी देखा। नाउ अदर एनिमल्स क्या बोल रहे हैं देखेंगे बच्चों।
lots of animals are there. Now see here other animals. The snake. First one is snake. What that is saying? The basket is my only home I have. I have forgotten what is like in the open jungle, fresh air. For me it is only the basket and the snake charmer. स्नेक क्या बोल रहा है पता है बच्चों? बास्केट ही मेरा लाइफ हो गया, जीवन हो गया है। मैं सब कुछ भूल गया, फॉरेस्ट क्या होता है, बाहर का एयर कैसा रहता है, मैं सब कुछ भूल गया मेरा लाइफ का। ओनली बास्केट ही मेरा लाइफ है। एंड स्नेक चार्मर, सफेरा, बास्केट एंड सफेरा ही मेरा लाइफ बन गया है। ऐसा क्यों बोल रहा है स्नेक? Tell me why it is saying. Look at this picture and read this one. What it is sharing with you. स्नेक आपसे क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है? बास्केट ही मेरा लाइफ है और सफ़ेरा ही मेरा लाइफ है। मैं भूल गया कि फॉरेस्ट कैसा रहता है, फ्रेश एयर कैसा रहता है, जंगल कैसा रहता है, फ्रेंड्स कैसे रहते हैं, फैमिली कैसा रहता है, मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा क्यों बोल रहा है? Why is telling this type? We will see. Okay? मैं बाद में बोलूँगी वो क्यों ऐसा बोल रहा है। आप थिंक करो थोड़ा सा। नेक्स्ट, इधर देखो। You have only seen how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when I fix the horseshoe to my shoes? बच्चों आपको दिखाता है, आपको देखता है क्या मैं फास्ट रन करता हूँ या? बट मेरे शू में शू हॉर्स फिक्स किए हैं, मेरे शूज फिक्स किया गया है। जब मेरे शूज में शूज हॉर्स शू फिक्स करते हैं ना बच्चों। हैव यू सीन माई शू? आपने इसका शूज देखा है हॉर्स का? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन द फिक्स दी शू हॉर्स शू? जब मेरे शू फिक्स करते हैं तो मुझे कितना दर्द होता है पता है? आपको मेरा रनिंग दिखता है, मैं कितना फास्ट रन करता हूँ। जब मेरे पैर में, फुट में हॉर्स शू फिक्स करते हैं मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखते हैं। Now, again one, this one see. You see me in circus, dancing and jumping through a ring of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, we get no food, only get a beating. A bear ऐसा क्यों बोल रहा है बच्चों? You will see मीन सर्कस, आप मुझे सर्कस में डांसिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, फायर रिंग से जंप करते हुए देखते हो, एंजॉय करते हो। मैं भी एंजॉय, थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि जब मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे खाना नहीं देते, मुझे पीटते हैं। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं भी थोड़ा सा एंजॉय भी करता हूँ, थोड़ा सैड भी हूँ। नाउ मंकी से हियर मंकी, व्हाट इट्स सेइंग? मंकी क्या से बोल रहा है आपसे? दे मेक अस डांस 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 इफ वी डू नॉट वांट टू डू और वी आर इन पेन। दे टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। मुझसे वो सिर्फ डांस करवाते हैं। मुझको करना हो या नहीं करना हो, पेन हो नहीं हो, सिर्फ मुझसे डांस ही करवाते हैं। मंकी बोल रहा है। स्नेक बोला, हॉर्स बोला, बेयर बोला, मंकी बोला। नाउ नेक्स्ट सी कैट। म्याऊ 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 म्याऊ। I can just roam here around there, everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk.
मैं म्याओ म्याओ करते इधर घूमता हूँ उधर घूमता हूँ, बच्चे मेरे से खेलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। हु सेड? कैट सेड। नाउ पिजन। गुटरुगु गुटरुगु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड विथ एन ग्रेन? गुटरुगु गुटरुगु, आई एम हैप्पी। What you learned from this lesson? आपको स्नेक ने क्या बताया, बेयर ने क्या बताया, बियर ने क्या बताया, एंड दिस वन हॉर्स, मंकी, क्या क्या बताया आपको, और कैट एंड पिजन। यहाँ पर स्नेक सैड है, बियर सैड है, हॉर्स सैड है एंड मंकी सैड है। कौन हैप्पी है? कैट एंड पिजन। Why they are happy and why they all are sad? Because snake is captured by snake charmer. स्नेक को सफेरे ने कैद कर बास्केट में रखा है। उसके जंगल से, उसके होम से वो उसको कैप्चर पकड़कर अपने बास्केट में रखा है, इसीलिए स्नेक सैड है। ही वांट्स फ्रीडम, ही वांट्स फ्री फ्रॉम स्नेक चार्मर। वो सपेरे से फ्रीडम चाहता है। नाउ हियर बियर क्या बोल रहा है इधर कि सर्कस में मुझे डांस करवाते, जंप करवाते, फायरिंग के ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉरेस्ट इज माई होम, आई वॉन्ट टू लिव इन माई होम। मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे जंगल में, मैं घर में रहना चाहता हूँ। जब मैं नहीं चाहता तो भी मुझको करना पड़ता है जंपिंग, डांसिंग, क्योंकि मुझे ये लोग बीटते हैं मतलब उसको छड़ी देते हैं, खाने के लिए नहीं देते, ऐसा नहीं किया तो। सो इसीलिए मैं सर्कस में ऐसा काम करता हूँ। बिकॉज आई एम कैप्चर्ड बाय देम। वो लोगों ने मुझको पकड़कर कैद में रखा है। आई एम नॉट हैप्पी। हॉर्स रेस में आपने देखा है, भागता है, रन 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 फास्ट रन, यू एंजॉय दैट वन। बट भागने के लिए मेरे पैरों में उन्होंने हॉर्स शू फिट किया है, लोहे का हॉर्स शू। यू आर वेयरिंग सॉफ्ट शूज। आप कितना सॉफ्ट शूज, चप्पल, सैंडल्स पहनते हो ना, थोड़ा हार्ड हो तो चुभता है आपको। थिंक करो बच्चों, इस हॉर्स के पैरों में लोहे का, आयरन का रॉड रहता है और आयरन का शू रहते हैं। दैट टाइम इट्स फील वेरी पेन। उस वक्त उसको बहुत दर्द होता है। सो इट इज अ सैड। मंकी, वेयर आर लिविंग मंकी? मंकी ऑलवेज लिविंग इन ट्रीज। दे आर जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। पेड़ों से पेड़ में कूदते हैं, खेलते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं। बट लोग क्या करते हैं, उसको पकड़कर डांस करवा लेते हैं, उनको पीटते हैं, खाने के लिए नहीं देते। उनको कुछ भी हो, बीमार हो या पेन्स हो, फिर भी डांस करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। सो दे आर अनहैप्पी। These 4 animals are unhappy because they are captured by others. किसी दूसरे के कैद में रहते हैं, इसीलिए वो अनहैप्पी है। एंड pigeon and cat are happy because they are free birds, free animal. Understood ना बच्चों? किसी को कैप्चर में रखना कितना बुरा होता है, किसी को मतलब एनिमल्स को। सो दैट लेट देम टू फ्री। उनको उनका जिंदगी जीने के लिए फ्री छोड़ना चाहिए ना बच्चों? यस, अंडरस्टूड ना हाउ दे आर सफरिंग, कैसे वो अनहैप्पी है, सैड है। ओके, नेक्स्ट ऑन द पेज हियर सी क्वेश्चन आस्क्ड, you have read
what these animals say? Yes, we have read, हमने पढ़ा उसको. What do you think that some of them are sad? आपने इसको पढ़ा, अभी हमने पढ़ा क्यों sad है? Because they are captured by others and these animals are happy because they are free. ये free है इसीलिए happy है, और ये capture में है, कैद में है, इसीलिए वो unhappy है. Second question. How do you think they are different? The monkey they dance to entertain people and the monkey that are free. Yes, the monkey dance to entertainment people. It is in capture. वो किसी के कैद में रहता है. And the monkey that are free, they are happy because they are free. जो किसी के कैद में है, जो वो मंकी जिसके कैद में वो अनहैप्पी है, और वो मंकी जो फ्री है वो हैप्पी है. ओके, कैप्चर्ड मंकी इज अनहैप्पी, फ्री मंकी इज वेरी हैप्पी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी किड्स, इट्स द लास्ट क्वेश्चन इज देयर. हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? How many legs does this animal have? In fact of animals, I told you, we learned about all the parts of this one animal. Animals have, sorry, not animals, elephant. Elephant have how many legs? Without count, tell me. Yes, correct, 4 legs. 1, 2, 3, 4. But here how much given? How much legs given? Count it. Elephants have 4 legs. Elephants have 4 legs. But how much legs here shown? You count it and tell me. Are you seeing 4 legs here? Okay. Count it and tell me. It is your homework. Do you know elephant helps each other when they are in trouble? They join together to care for and rescue their young ones. आपको पता है एनिमल्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. व्हेन एलिफेंट ट्रबल में रहा, प्रॉब्लम में रहा, तकलीफ में रहा, तो सभी एलिफेंट मिलकर उसको हेल्प करते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए दे लिव इन ग्रुप. दैट इज कॉल्ड हर्ड. Understood now? Female elephant and baby elephant all live in herd. वो सभी ग्रुप में रहते हैं. Only boy elephant, जो बॉय रहता है ना, वो अकेला जंगल में घूमता है. Understood? Elephant have 4 legs, 1 trunk, 2 big teeth, 1 small tail, 2 small eyes and 2 big ears and 1 big stomach. Okay, I told you your answer here only. Thank you kids for watching the video.